Hello, all my friends out there. Hi, I'm Garima. A very good morning to you. I hope everyone is safe, secure, looking forward, and forgiving. Today I'll be doing a week ahead, and yes or no card for all the zodiac sign. The timestamp will be given below in the description box so you can see for your desired zodiac sign. Now I'll begin the session. I'll begin the session with the thought of a day. Let's see the thought of the day. Also, I'll be doing a birthday special for this weekend for 22 and 23. Let's see what is the thought of the day. The thought is yesterday is a history, tomorrow is a mystery, today is a gift. So, as the saying goes, past is past, future is unknown, so be in the present because that is the best gift. Now let's see what is the birthday gift for the people for 22nd and 23rd. First we'll go for 22nd. King of Swords, the World, the Magician. The thing is that you have a very good thought, and the thought is whatever thought it is coming, you have a very clear mindset, and whatever work you're doing will be related to abroad, or maybe there will be some messages coming from abroad and you will manifest that. Supposing in your job you can get a call from your friends, from your colleagues or a boss, and uh, they will give you a message that about the job, and you will manifest it in your future. So something really related to the world, that is the abroad, you are having a job related thing. So best wishes for 22nd, and there is lot of clarity in your mind and you are very much clear to do that job. So you should go ahead because you have the resources and you have the skills and everything. So whatever job related things have coming, you should go ahead. Now we will see for 23rd people. Let me see what is there for 23rd people. Five of Swords, Three of Swords, Four of Swords. So that lot of fire energy, and the thing is that you are thinking there is some betrayal. Somebody has betrayed you in job, in relationship, anything, or you are having a fight with someone, or there is not a good relationship with someone. You're waiting for some opportunities to come, and it will come. So wait. The opportunities for job, opportunities for love, anything will be coming. It is on your way. So wait. So much you have waited, you wait. There will be a good news for that. And in near future I'm thinking there will be a stability in your finance, stability in your marriage, stability, or you may be being getting married near future. So this is all thing. So you have to only take care about the betrayal part. If you are hurt, if you are fighting with someone, or you are having a misunderstanding, or you are not gelling with another, take care of that part.
Other rest of the thing is fine. Now we'll begin with the weekend for the zodiac sign and week ahead. The week, the full week. Okay. The first one is the Aries. Aries. Give me a good one. Okay, fine. This, I'll take this card. Ten of Rods. Queen of Rods. And the World. Wow. The thing is that Aries, you in this weekend you are feeling very burdened. आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत बोझ है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको है और उसे आपको निभानी है. सो देयर इज़ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. टेक केयर ऑफ योर हेडेक्स. इफ़ यू हैव headaches, take medicines. Do some meditation for your headaches, because it is thinking that you are having some headache and you are taking lot of stress. So this weekend, but in a week, with your intuition, with your meditation, with your right decision, the things will go smooth. And you may have to travel, or you will get a message from abroad, or anything related. There is going to be a end of something and a beginning of a new thing. Supposing there is a relationship, it will end and a new thing will be coming. So the whole week, I would say, is maybe, like maybe your work will be done, maybe you are going to get the things done. And there is lot of hope in this week. The next one is the Taurian. Taurus. My God. Okay. Lovers, yes. Oh. Okay, the thing is that today there is lot of, you may be traveling, and that is something in a relationship. This is mostly in a relationship. I'm going to say that if you are being betrayed or something like that, or there is a message coming, mostly it is on the relationship. Your relationship may end today in this week, and you are getting some message from the loved ones. Your loved ones are very much tense about you, so you have to take a right choice. आपको एक right choice करनी है, because ये दिखाई जा रहा है कि आपके relationship में problem है और वो ख़त्म होने वाले हैं और एक नई relationship की शुरुआत होगी. सपोजिंग अगर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो आप शायद वो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे या उस रिलेशनशिप को ख़त्म करेंगे. सो इन दिस वे the whole thing is related to the relationship. The whole week में आपको relationship का care करना है. और जहाँ तक job की, finance की बात है, तो इसमें आपको choices अच्छी करनी है. आप अपनी choice पे डिफेंड करिए. और जो भी आपका काम है, अगर ये जो भी चीज़ है वो 10 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगी, 10 दिन में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा. तो ये मेरे लिए अभी नो है, बिकॉज़ अच्छा वीक
मैं नहीं कह सकती, क्योंकि यहाँ आपको डिसीजन लेना है. सो दिस वीक इज़ नो. अभी आप केयरिंग करिए. The next one is the Gemini. Okay, give me a good one. Page of Pentacles, yes. Page of Pentacles, Knight of Swords. Oh, जेमिनाई, क्या कर रहे हैं आप लोग के वीक में? आपको पैसों की बड़ी चिंता है. आप पैसों के बारे में सोच रहे हो कि मैं कैसे पैसे की, आपको लगता है पैसों के बारे में इस वीकेंड आप बहुत सोचेंगे और आप बहुत सोच रहे. पूरे वीक आपका स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन में जाएगा. तो इसलिए आप जो भी है, ग्रीड मत रखिएगा. ओके, पैसों को लेके आप ग्रीड मत रखिए. आप बहुत ही पॉजिटिव हो रहे हैं. या तो आप बहुत ग्रीडी हो रहे हो और या आप बहुत पॉजिटिव हो रहे हो. सो आई वुड लाइक टू से कि दिस इज़ द होल वीक इज़ रिलेटेड टू द फाइनेंस को लेके आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे. आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे. या तो आप फाइनेंस के लिए आप कोई जॉब की तलाश करेंगे, उसके लिए आप परेशान रहेंगे. और अगर आप, हो सकता है आप ग्रीड में आप आकर कोई गलत काम ना करिएगा. तो ये आप सोचिए कि मैं ये करने से पहले आपको मैं ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप सोचिए कि बह मत जाइएगा. तो ये तो नो है. पूरा वीक आपको बहुत ही संभाल के निकालना है. द नेक्स्ट वन इज़ द कैंसर. Give me a good one. Four of Swords, Seven of Cups, and Eight of Cups. ये है कि अगर रिलेशनशिप में हैं तो आपको रेजुविनेट करने की ज़रूरत है. बिकॉज फोर ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आप बहुत परेशान हैं, तो आप थोड़ा मेडिटेशन में जाइए. फाइनेंस को रिलेटेड आप परेशान हैं, थोड़ा रेस्ट करिए, माइंड को रेस्ट करिए. आपके पास ऑप्शंस बहुत है. आप डे ड्रीम भी बहुत कर रहे हो. ये वीक बहुत डे ड्रीम करोगे, अरे मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा. ऐसे नहीं, डे ड्रीम नहीं करना है. क्योंकि हो सकता है आप डे ड्रीम कर रहे हो, या तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या बात है, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं कुछ भी कर लूँगा. लेकिन आगे क्या होगा कि आप कुछ भी नहीं करेंगे. आप सब कुछ छोड़ के, आपको ऐसा लगेगा छोड़ो और मैं निकल जाता हूँ. एंड तक, वीक के एंड तक आप बोलेंगे छोड़ो यार, क्या प्रॉब्लम में फंस गया हूँ इसके लिए. तो इसलिए ये जो वीक है आपका है, इसमें मैं आपको ये एडवाइस देना चाहती हूँ, भले ही आपके पास ऑप्शंस बहुत हों, लेकिन आप उसमें से एक चूज़ करिए और उस परिस्थिति को छोड़ के मत जाइए. परिस्थिति को छोड़ के क्यों नहीं जाना है? क्योंकि अगर एक ऑप्शन नहीं है तो आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है ना, उस पर आप भरोसा करिए. तो मेन थिंग इज़ कीप होप एंड बिलीव एंड चॉइस, द बेस्ट थिंग. तो ये जो है, ये मैं भी बोलूँगी, ये वीक मे भी रहेगा. आपका काम बनेगा नहीं बनेगा, इसके लिए ये वीक इज़ मे बी फॉर यू. द नेक्स्ट इज़ द लियो. Leo, Ace of Rods, Two of Rods, Ace of Cups.
ओ वाओ लियोज, एवरीथिंग इज़ गुड फॉर यू। अगर आप नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हो, आपका नया रिलेशनशिप शुरू होने वाला है, तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप आगे बढ़िए। लेकिन आपको, अगर आपको दो चीज़ में आपको चॉइस मिलेगी तो आपको एक चीज़ चॉइस करनी पड़ेगी। आपको हो सकता है कि कहीं से आपको संदेश मिले, अगर अब्रॉड से आपको कोई जॉब की ऑफ़र आ रही है, या बहुत ही चूज़ करेंगे तो आप बहुत ही फार साइटेड रहेंगे, दूरदर्श। आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आप आगे की सोच के लेंगे। तो आपकी लव रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छा है। आपको अगर नए इंस्पिरेशन, अगर आपका विल पावर देकर आपको कुछ चीज़ स्किल सीखनी है तो आप उसमें विल पावर भी डाल सकते हैं इस वीक। आप इस वीक को और आप इस वीकेंड को भी बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि आपके अंदर नई ऊर्जा रहेगी, नए सब चीज़ रहेंगे। तो दिस इज़ फॉर लियो। आपके लिए ये वीक और ये वीकेंड बहुत अच्छा है। द नेक्स्ट इज द वर्गो। वर्गो के लिए क्या है? गिव मी अ गुड वन। Oh, Wheel of Fortune, Justice, yes, and Page of Swords. ओहो, आज आपकी थिंकिंग, आप का समय अच्छा चल रहा है। आप जो भी कर रहे हैं ना, आप में क्लियरिटी है। आप जो भी कर रहे हैं, आप में, चाहे वो फाइनेंस में हो, चाहे वो लव में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, आपका लक आपको फेवर कर रहा है। और आप जो भी करेंगे आपको उसमें जस्टिस मिलेगी, आपको उसमें जस्टिस मिलेगी। और अगर आप कुछ कर रहे हो तो अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो आप उसके लिए फेयर गेम खेलोगे। तो आप बहुत ही यहाँ ऑनेस्ट, क्लियरिटी के साथ पूरा वीकेंड गुजारेंगे, और आपको हर काम में आपकी क्लियरिटी रहेगी और आपका हर काम बनेगा, बिकॉज आपके साथ लक है। तो डेफिनेटली फॉर वर्गो दिस इज़ अ गुड वीकेंड एंड अ वीक। आपको अपनी क्लियरिटी रखनी है, आपको फेयर रहना है, और आपका लक आपके साथ है, आपका लक आपके साथ है। द नेक्स्ट वन इज़ द लिब्रन। Give me good one for Librans. Oh, Librans, Moon, Rest. Oh, Ace of Road. ये वीकेंड आप थोड़े निराश रहेंगे, और आपको बहुत निराशा रहेगी, और आपको बहुत डर रहेगा। तो आप उस डर के कारण पूरा वीक सुस्त रहेंगे, और आप कुछ करने की आपको ऊर्जा नहीं रहेगी। तो ये मैं कह रही हूँ कि आप अपने अंदर बिलीफ रखिए, ये तो रहेगा ही। It is thinking that you will be in a very low key, and you would like to sleep and you want to rest and you want to clear your thoughts. लेकिन आगे जो एंड होगा ना, वो अच्छा होगा, एक नई ऊर्जा के साथ होगा। आपकी विल पावर बढ़ जाएगी, आप करने के लिए आप डिटर्मिन्ड रहेंगे। तो ये जो रेस्ट पार्ट है, आपको जो पूरा दिन आप वीक में रेस्ट करोगे, बहुत अच्छी बात है। आप सोचिए, अगर आपको किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, किसी ने धोखा दिया हो, या आपके अंदर कोई इल्यूजन है कि आप जो देख रहे हैं वो है ही नहीं, लेकिन आप उसको सोच ही रहे हैं कि हाँ ये यही चीज़ है, यही चीज़ है। तो आप ये सब ना करके आप पूरे वीक आप सोचिए कि ये मैं जो कर रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि जॉब में आपको प्रमोशन मिल रही है, ये आपका इल्यूजन है, आपको मिलना ही नहीं है। तो ऐसा आपको इल्यूजन्स हो रहे हैं, आपको कुछ गलत चीज़ की इल्यूजन्स हो रही है। तो इस गलत चीज़ की इल्यूजन के लिए ये पूरा वीक आपको रेस्ट करना है, सोचना है, और आगे का जो एंड डेज ऑफ द वीक रहेगा, वहाँ आप एक अच्छे डिसीजन लोगे, डिटर्मिन्ड रहोगे। तो ये मेरे लिए मे बी कार्ड है। आपका पूरा वीक
एंड और वीक में भी अच्छा रहेगा। ओके लेकिन अगर आप देखा जाए आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आप रेस्ट करोगे, एक नए डिसीजन लोगे। ओके द नेक्स्ट वन इज द स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियंस के लिए क्या है, गिव मी अ गुड वन। ओहो स्कॉर्पियंस, 8 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, ओके, किंग ऑफ रोड्स। देखिए स्कॉर्पियन, आप किसी चीज़ में फंस चुके हैं। ओके आप ये वीकेंड ऐसे फंसा हुआ पाओगे कि मैं कुछ फंस चुका हूँ, तो आप ये फंस गए हैं तो आप फंसे हैं तो आप निकल भी सकते हैं उससे। तो ये मत रखिए कि मैं फंस चुका हूँ, मैं कैसे निकलूँगा। आपको कोई चीज़ दिखाई ही नहीं दे रही है, आपको सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है। सो यू हैव टू सर्च। सपोजिंग जॉब है, जॉब में अगर आपको फंसा हुआ महसूस करें तो आप देखिए कि क्या वजह है, किस वजह से ये मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। लव रिलेशनशिप है तो मैं फंसा हूँ, तो मैं क्यों फंसा हूँ, क्या वो जिससे मैं रिलेशन रखा हूँ वो सही इंसान है, या तो मुझे रहना चाहिए कि नहीं। तो इस वीक आपको पूरा इंट्रोस्पेक्ट करना है अपने आप को। यू हैव टू डू इंट्रोस्पेक्शन, यू हैव टू गो विद इन एंड यू हैव टू आस्क क्वेश्चन whether in this job I am good, I am feeling trapped, so why I am feeling trapped. All these questions have to be asked by yourself, and then end of the week you will come to a solution where you will be visionary towards the whole week. मतलब अगर आपका फाइनेंस को लेके है, जॉब को लेके है, लव को लेके, उसमें आप एक विजन ले पाओगे एंड ऑफ द वीक. So this is a very good, it's a maybe आई वुड लाइक टू से, बिकॉज ये अच्छा भी हो सकता है अगर आपने वीक अच्छे से इंट्रोस्पेक्ट किया, और नहीं किया तो बुरा भी हो सकता है। तो इट्स अ मे बी। द नेक्स्ट वन इज द सैजिटेरियन। गिव मी अ गुड वन फॉर Sagittarius. Oh, Sagittarius, 10 of Rods, lot of responsibility, Queen of Rods. Oh, it's the same thing with some other cards also. They have come the same cards. The thing is कि Sagittarian are feeling very stressed out and burdened, and they have lot of responsibility, and they are not thinking. They are having a headache. Please take care of your head. आपको नींद नहीं आ रही है, आप सोच ही नहीं पा रहे हो क्या हो रहा है आपके लाइफ में। तो आप अपनी इंट्यूशंस पे काम करिए, आप विजन्स रखिए, आप सोचिए कि कैसे मैं इस चीज़ से बाहर निकल सकता हूँ और कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलाइन कर सकता हूँ। एंड ऑफ द वीक आपको जो भी है उसमें एक विज़न मिलेगा, आप उस पे काम कर पाओगे। अपने रिलेशनशिप में हो, आपके फाइनेंस में हो, आपकी जॉब रिलेटेड अगर आपको बर्डन फील कर रहा है तो आप अपने अंदर देखिए कि वो क्या चीज़ है, कौन है जो आपके, कोई लेडी है, कोई भी इंसान होगा जो आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस कर रहा होगा। सो आप उस पर वर्क करिए कि उस पर कैसे आप ठीक कर सकते हैं। बिकॉज एक फीमेल एनर्जी बहुत यहाँ दिखाई दे रही है, एंड एंड ऑफ द डे बहुत ही अच्छा दिन जाने वाला है, बहुत ही आपको क्लियरिटी मिलेगी, विजन अच्छा रहेगा। सो दिस इज़ अगेन अ मे बी फॉर मी। The next one is the Capricorn. Give me a good one for Capricorns. Give me a good one for Capricorns.
Four of, there is lot of, wow, Four of Rods, King of Rods, and Knight of Rods. ओह वाह, क्या है कि बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं आपके, आप बहुत ही स्टेबल हो, ओके आप विजनरी हो, और आप पूरे टाइम अच्छे लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में रहेगी, पूरे वीक आपको लीडरशिप क्वालिटी, आप स्टेबल रहोगे आपके रिलेशनशिप में, आपको हो सकता है मैरिज, आपकी मैरिज की बातें हो रही हों, और या फिर आप मैरिज में जा सकते हो किसी के, या वर्चुअल मैरिज में, और या कुछ ऐसा, और एनीथिंग, कुछ आपके घर में ऑस्पिशियस थिंग हो सकती है इस वीकेंड, और तो पूरा जो वीक है आपका कैप्रिकॉन्स अच्छा है, आपको आप एक लीडरशिप की तरह आप सब डिसीजंस लोगे, आपके माइंड में इतनी क्लैरिटी है, आप बहुत ही, लेकिन एक बात है कि एंड में कोई ऐसी चीज़ मत करिए कि जल्दबाज मत होइएगा। अगर आपको कोई फाइनेंस देना है तो उसमें जल्दी फाइनेंस, आप सोचिए, ठहराव लाइए, एंड देन यू डू टेक एनी डिसीजन। एंड ऑफ द वीक में आपको ठहराव लाना है, आपको ऐसा नहीं करना है कि जल्दी जल्दी सब कुछ नहीं करना है। डोंट बी क्विक, you have a leadership quality, you take a decision, you take a choice, and then you do things, बिकॉज आप विजनरी हो, आप विजन को पहले प्रायोरिटी देना, आपकी जल्दबाजी जो है ना कि जल्दी जल्दी में सब कुछ कर लूँ, उसको ज़रा आप पीछे रहने के लिए। तो दिस इज़ अ गुड कार्ड, दिस इज़ अ गुड वीक फॉर यू, यस। The next is the Aquarius. Aquarius. Give me a good one for Aquarius. Give me a good one. 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 Oh. Emperor. The Chariot. Oh wow. And Seven of Swords. Oh my God, ये क्या है? आपके जो हेड ऑफ द फैमिली है ना, वो कोई डिसीजन लेंगे और उसमें आपको हो सकता है लॉस हो, तो ये जो हेड ऑफ द फैमिली आपके मोस्टली जो घर के हेड हैं, उनके लिए आप कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं, आप मूव ऑन करेंगे उसके लिए। आपने डिसीजन वीकेंड में लिया और आप उसको लिए पूरा वीक आप उसके पर सोच के आप वो उस डिसीजन को लेंगे, लेकिन मैं कह रही हूँ उसमें आपको बिट्रेयल लॉस होगा। सो आप जो भी डिसीजन ले, चाहे वो मैरिज के लिए हो, जॉब के लिए हो, फाइनेंस के लिए हो, जो भी आपके घर का हेड है उसको संभल के रहना है कि आप जो वीकेंड में जो भी आप चीज़ का डिसीजन लेने वाले हैं, आप उसको सोच समझ के करिए, नहीं तो उसमें लॉस हो सकता है, आपको बिट्रेयल मिल सकती है, आप निराशा हो सकते हो। सो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आपको जो भी आप करें, वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इच्छा है तो आप करिए, लेकिन आपको ध्यान देना है, आपको मोस्टली ध्यान देना है कि आपको कोई लॉस ना हो, आपको कोई बिट्रेयल ना हो। तो दिस इज़ अ मे बी, आपका वीकेंड मे बी में जाएगा। मे बी आपको लॉस हो जाए तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, अगर नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छा, आई प्रे फॉर यू दैट यू टेक अ गुड डिसीजन, एंड प्लीज स्पेशली फॉर द हेड ऑफ द फैमिली, प्लीज यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। The next but not the least is the Pisces. Ten of Cups, wow. Two of Cups, sorry. Two of Cups. Ten of Rods. हाँ पाइशेंस, ये क्या आपको लव लाइफ में ऐसा लग रहा है कि वो बर्डन है, आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं जा रहे, आपको ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप बर्डन है और मैं इसको छोड़ के चली जाऊँ, और छोड़ के जाने की इच्छा रहेगी। लेकिन मेरी सलाह है कि प्लीज़ ऐसे मत करिए, आप उसको सुलझाने, अगर आप मैरिड हो तो आप ज़रा उस पर वर्क करिए,
आपको लव लाइफ में आपको जो भी अगर आपको जॉब है, जॉब में भी अगर आपको कोई ऑफ़र मिल रहा है तो आपको वो ऑफ़र एक बर्डन जैसा लगेगा। आप सोचेंगे कि नहीं, मुझे ये इसमें इच्छा नहीं हो रही करने के लिए। फाइनेंस भी आप हैं तो फाइनेंस में भी आपको ध्यान देना है कि आप उसको, वो फाइनेंस को लेके आप में कुछ वो बर्डन ना बन जाए, स्ट्रेस लेवल ना बन जाए, आप कहीं गलत डील ना कर दो। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। इट्स अ मे बी week, so please take care of your, first of all, your relationship. It's like a burden, frustration for you, and you are thinking of leaving away, so don't do that. I would suggest, I will give one more card for you, that what should you do, what should you, what is the counterpart. हाँ, बहुत जल्दबाज भी रहेंगे आप लोग। So quickly you want to delete this relationship from your life. Please don't do. If you are thinking, then you should go ahead. Yeah, and you will do it quickly. ये सब फटाफट हो जाएगा. Burden है, इन्हें छोड़ के जा रहा हूँ ऐसे. So take care of that. So this week is maybe. So all these 12 zodiac sign, their week ahead, the whole week advice I have given you. I hope you resonate with this, and if you resonate, kindly subscribe my channel Tarot A New Horizon. By ending, I would like to give you some good thoughts for the whole week, for the whole, all the overall zodiac sign. Let's see what it comes. प्लीज़ डोंट ओवर थिंक। पूरे सब जोडियक साइन को कहना चाहती हूँ कि ओवर थिंक मत करिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि होप रखिए, अपने आप में होप रखिए, रिलेशनशिप में, फाइनेंस में होप रखिए, एंड माइंडफुल रहिए। प्लीज़, ऑल द जोडियक साइन, दिस इज़ द की मंत्रा, 3 की मंत्रा। डोंट ओवर थिंक, keep a hope, and be mindful. Do the things with a very thoughtful process. Okay? Thank you for joining with me. I hope you like my session, and please subscribe and click the bell icon for a new reading. I will come back with a new reading in the month of June with you all. So stay tuned. Bye.